news on this very auspicious day, and this one coming in from Uttarkashi. Let's quickly take you through the tragic details that continue to unfold. 36 laborers are fear trapped. This after an under construction tunnel collapsed in Uttarkashi. The upper 50-meter part of the tunnel has sunk. The oxygen pipe has been brought inside. No casualties so far have been reported though officially, but nearly 30 to 40 laborers we're learning are trapped as this Uttarkashi under construction tunnel has collapsed. So there are several fear trapped after portion of this tunnel under construction between Silkyara and Dandalgaon of the Brahmakal Yamunotri National Highway in Uttarkashi collapsed. This happened early hours today itself. The police, of course, have been breaking down certain details on how, for example, this took place close to 4 a.m. when this 150-meter long portion of the 4.5 kilometer long tunnel collapsed. And as soon as the information about the incident was received, the police immediately rushed the spot and launched a relief and rescue operation. Relief and rescue operation still underway, but over 30 laborers are feared trapped since this portion a portion of this under construction tunnel has collapsed in Uttarkashi. Apart from this, we're also learning that the NDRF, the State Disaster Response Force, Fire Brigade and employees of the National Highway and Infrastructure Development Cooperation Limited, the NHIDCL, are also at the spot. This, of course, is the organization which is constructing the tunnel, but a part of this tunnel has broken about 200 meters ahead of the starting point, and as per the officials, the ones who are looking after the construction were about 36 people, I beg your pardon, are trapped in the tunnel, and efforts are still being made to rescue them safely. Apart from this, like I said, the police force, NDRF, SDRF teams are also present at the spot. Until now, no casualty has been reported, but more than 30 fear trapped. We have Abhishek Sinha joining us on the phone line. Very unfortunate news coming in on this very auspicious day from Uttarkashi. Abhishek, what are the details that you're learning of? देखिए, जो इस समय डिटेल हम लोगों को मिल पा रही है वो 36 लोगों की है जो सुरंग के अंदर फंसे हुए हैं। ये 4.5 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाई जा रही थी, जिसमें 4 किलोमीटर का काम पूरा हो चुका था। और मैं आपको बता दूं, जहां सुरंग की शुरुआत होती है उससे 200 मीटर अंदर जो मलबा आया है, जिसके बाद वो सब लोग अंदर फंस गए हैं। तकरीबन 2400 मीटर जिसकी गहराई है उसके अंदर वो लोग फंसे हुए हैं, और इस समय एसडीआरएफ और आपदा प्रबंधन की टीम वहां पे मौके पर पहुंची हुई है, और उस मलबे में से एक पाइप जो ऑक्सीजन पाइप है उसे पहुंचाने की जुगत लगाई जा रही है, जिससे कि अंदर किसी तरह की कोई जन हानि ना हो, ऑक्सीजन प्रॉपर मिलती रहे जब तक कि यहाँ से कैजुअलिटी ना हो। और उसके लिए लगातार जेसीबी वगैरह मशीनें बुला ली गई हैं और लगातार उनको मलबा हटाया जा रहा है, और ऐसा माना जा रहा है कि ये अगले 2 से 3 दिन अभी मलबा हटाने में समय लग सकता है। जी, इसीलिए अभिषेक ऑक्सीजन पाइप का इस्तेमाल करना बहुत ही जरूरी था। लेट्स आल्सो लिसन इन टू मोर रिएक्शंस कमिंग इन। अभिषेक बने रहिए हमारे साथ। लेट्स फर्स्ट अप लिसन इन फ्रॉम द एसपी उत्तरकाशी। लिसन इन। एसडीआरएफ पहुंच चुके हैं मौके पर। कल 36 जो है उनके रिकॉर्ड के हिसाब से जो है अंदर अभी ट्रैप्ड है, और ये सूचना जो है तड़के जल्दी की बताई जा रही है 6-7 बजे के लगभग की। और ये जो आप देख रहे हैं ये स्टार्टिंग पॉइंट है टनल का, इससे लगभग 200 मीटर आगे की घटना है, जिसमें 50 मीटर का जो प्रोजेक्शन है टनल का ऊपर से वो धंस गया है। तो अभी जो है हम जो भी इक्विपमेंट्स हैं, मशीनरी है, वो सब यहाँ पे रोप इन कर लिया गया है, और जो रेस्क्यू है वो युद्ध स्तर पे चल रहा है। एक ऑक्सीजन पाइप जो है अंदर पहुँचा दिया गया है, और ऑलरेडी ऑक्सीजन अंदर है, तो मोस्ट प्रोबेबली जो है वो सेफ होंगे। अभी कोई जनहानि या कैजुअलिटी कोई सूचना नहीं है। While Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami has also reacted in the latest and has spoken on the kind of rescue and relief operations that have been ongoing by multiple agencies. Listen in. लोग, हमारे आपदा प्रबंधन के लोग, सारे लोग आपदा के काम में लगे हैं, रेस्क्यू के काम में लगे हैं, बचाव के काम में लगे हैं, और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सभी मौके पर पहुंच गए हैं, और भगवान से प्रार्थना करते हैं हम कि जल्दी सभी सकुशल जो है वापस आएं। Let's go across to Abhishek once again. Abhishek, जैसे चीफ मिनिस्टर ने बताया, HIDCL, SDRF, NDRF, पुलिस सब रेस्क्यू ऑपरेशन में जोरों शोरों से लगे हुए हैं। 4 बजे बताया जा रहा है सुबह ये हादसा हुआ। इसकी वजह कुछ सामने निकल के आई है अभी तक?
देखिए, मैं आपको बता दूं, जो यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग है, और अगर उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति के बारे में बात करूं तो जो अधिकतर पहाड़ हैं वो मिट्टी से बने हुए पहाड़ हैं, जिसकी वजह से ऐसे घटनाएं अक्सर हो जाती हैं यहाँ पर कि जब आप सुरंग खोदते हैं, जैसे कि 4.5 किलोमीटर लंबा मार्ग है जिसमें 4 किलोमीटर कंप्लीट भी कर लिया गया है, 500 मीटर बचा हुआ है। और जब वो खोदा जा रहा था उसके बीच में जो हिस्सा है 200 मीटर का, जो खोद के मजदूर आगे जा चुके हैं, जिसमें 2400 मीटर आगे हैं तो वो जो 200 मीटर आगे जो था वो कोलैप्स हो गया, और जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है। और मिट्टी के पहाड़े हैं वो दरकते रहते हैं, और इसकी वजह से सुरंग का निर्माण किया जा रहा था। ये राष्ट्रीय राजमार्ग को जोड़ता हुआ 4.5 किलोमीटर की सुरंग का टनल का मार्ग है, और ये ऑल वेदर जो रोड्स बन रही है उत्तराखंड में, कनेक्टिविटी को लेकर अच्छी यात्रा हो, जिसकी वजह से ये जो रोड्स बन रही है उसी का ये नवनिर्माण का कार्य चल रहा था, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है। और देखिए, अभी जांच का विषय बना हुआ है। लगातार मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि इसकी जांच कराएंगे कि हादसे घटने की असली वजह क्या है, और इसके पीछे के और कौन से रीजन ऐसे हो सकते हैं जिसकी वजह से ये हादसा घटा है। क्योंकि जो भी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिहाज से जो टनल का निर्माण किया गया, इंजीनियर्स की रिपोर्ट अभिषेक इस बात पे है कि जो फंसे हुए हैं लेबरर्स, उनको सबसे पहले निकाला जाए। धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। एंड लाइक अभिषेक पॉइंटेड आउट, विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस ऑल वेदर टनल अंडर द चारधाम रोड प्रोजेक्ट, द जर्नी फ्रॉम उत्तरकाशी टू यमुनोत्री धाम will also be reduced by 26 kilometers. So this tunnel was part of that very project. Over 30 workers fear trapped. We're tracking that very closely. A quick break for now.